Hi guys, welcome to the e-learning. In today's video, we're going to learn about the deadlock avoidance. Okay, so let's get started. So deadlock avoidance is simply refers to avoiding deadlock by checking that whether granting request to any process will not lead to the system into the unsafe state. It means that if any process arrives, so system will first check whether granting request to this process will lead to the system in safe state or unsafe state. Okay, if granting request to any new process will lead to the system into the unsafe state, then that particular request will not grant it. Okay, now for knowing that a process will lead to a system in safe state or not a safe state, any unsafe state, system must know about all the details about a process in advance. Okay, and the details include the number of resources a process need. Okay, the number of resources a process need in the extreme conditions. It means that when the process need all of its resources, कि ऐसी भी कोई कंडीशन आ जाए प्रोसेस को उसके सारे रिसोर्सेज चाहिए, तो क्या सिस्टम एबल हो पाएगा, क्या सिस्टम कैपेबिलिटी रख पाएगा कि वो उसको सारे रिसोर्स दे दे विदाउट गोइंग इनटू द स्टेट ऑफ डेडलॉक. ओके, ओके, सो इट बेसिकली डिटरमाइन कि कोई भी नई प्रोसेस आ रही है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल उस प्रोसेस के आने से पहले सिस्टम के पास उस प्रोसेस की सारी डिटेल्स आ जानी चाहिए. एंड वो डिटेल्स कहाँ से आएंगी? वो डिटेल्स आएगी उस प्रोसेस के पीसीबी से, यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से. मैंने आपको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में पहले बता रखा है. ओके, सो वो डिटेल पीसीबी से आपके सिस्टम के पास आ जाएगी कि कितने नंबर ऑफ रिसोर्स इस प्रोसेस को चाहिए. ठीक है, कितने आईओ डिवाइस चाहिए, कितने सीपीयू चाहिए, कितनी मेमोरी की एलोकेशन चाहिए. ठीक है, सिस्टम क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम इन सबको एग्जामिन करेगा. उसके बाद चेक करेगा कि क्या ऑपरेटिंग के सिस्टम के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोसेस को रिक्वेस्ट ग्रांट कर देता है तो वो इसकी सारी नीड को सेटिस्फाई कर सके. कि अगर ये प्रोसेस एक्सट्रीम एक्सट्रीम कंडीशन में ये सारे रिसोर्स भी एक साथ मांग लेती है, तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम इतना कैपेबल है कि वो इसको सारे रिसोर्स दे सके विदाउट गोइंग इनटू द स्टेट ऑफ डेडलॉक. ओके, सो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है इतना कैपेबल कि वो बिना डेडलॉक की स्टेट में जाए, उस प्रोसेस को सारे रिसोर्स दे सके, तो उस प्रोसेस की रिक्वेस्ट को ग्रांट कर दिया जाएगा. अदरवाइज उस प्रोसेस को रिक्वेस्ट ग्रांट नहीं की जाएगी. Okay, the same thing will write over here कि deadlock avoidance is used by operating system to avoid deadlock in the system. The process need to specify the maximum resources needed to the operating system. यानी process को specify करना पड़ता है कि उसे maximum कितने resource चाहिए, so that operating system can simulate the allocation of the available resources. ठीक है, to the requesting process, यानी कि वो देख सके कि इस requesting process को कितनी available resource की requirement है. And check if it is possible to satisfy the need of the process requirements, कि क्या satisfy करने के मैं लायक हूँ, क्या मैं इतना capable हूँ कि मैं इसकी सारी need को satisfy करके भी safe state में रह सकता हूँ. Okay, so this is basically what we call deadlock avoidance. Okay, so this is basically the main thing. Deadlock is basically happen in the unsafe state. Okay, in the unsafe state when a system is not capable of satisfying the need of a process. कि अगर कोई ऐसी प्रोसेस को सिस्टम ने रिक्वेस्ट ग्रांट कर दी है जिसकी वो नीड ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो वो प्रोसेस रिसोर्स मांगती जाएगी और सिस्टम कैपेबल नहीं होगा देने की, तो वो क्या हो जाएगा? वहां डेडलॉक हो जाएगा. सो डेडलॉक ऑलवेज हैपन इन द अनसेफ स्टेट, while in safe state there will be no deadlock. Okay, now let's see the banker's algorithm. See, deadlock can be avoided by using the banker's algorithm. So what's the banker's algorithm is? See, banker's algorithm basically is the algorithm which check that granting request to any new process will not lead to the system in unsafe state. It basically check whether the system have the capability to satisfy the maximum requirement of a process or not. ओके, क्या सिस्टम के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो उसकी मैक्सिमम नीड भी सेटिस्फाई करके भी सेफ स्टेट, यानी कि एस स्टेट तक चेक ले सके कि हाँ मैं सेफ स्टेट में हूँ.
ठीक है, बैंकर्स एल्गोरिथम ये काम करती है. व्हाई द नेम इज सो बैंकर्स एल्गोरिथम? इट्स नेम इज सो बिकॉज इट्स यूज इन द बैंक. ओके, बैंकर्स एल्गोरिथम आपकी बैंक्स में यूज की जाती है टू सैंक्शन लोन टू द पर्सन्स. ओके, लोन सैंक्शनिंग में आपकी बैंकर्स एल्गोरिथम यूज की जाती है. अब किस तरीके से? सपोज देर आर n नंबर्स ऑफ अकाउंट होल्डर, n नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर्स हैं आपके बैंक में, ठीक है, एंड टोटल सम ऑफ देयर मनी इज s, यानी कि मतलब कि आपके एक बैंक है, इस बैंक में आपके n नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर्स हैं, ठीक है, उन सबका पैसा इस बैंक में है. ठीक है, अगर कोई नया बंदा, अगर कोई नया पर्सन इस बैंक में लोन लेने आता है, तो देखा जाता है कि पहले इस पर्सन को कितना लोन चाहिए. इस पर्सन को जितना लोन चाहिए वो बैंक में टोटल जितने पैसे हैं उसमें से सबट्रैक्ट किया जाता है. ओके, उसके बाद जो पैसा बचता है, फिर बैंक एग्जामिन करता है कि ये जो बचा हुआ पैसा है, क्या ये पैसा सेटिस्फाई कर सकता है नीड बैंक की. इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इस नए बंदे को रिक्वेस्ट ग्रांट कर दूं, अगर मैं इस नए बंदे की रिक्वेस्ट सेटिस्फाई कर दूं, इसको लोन सैंक्शन कर दूं, तो मेरे पास टोटल पैसा जो है बैंक में, उससे जो माइनस करके पैसा बचेगा, क्या वो पैसा बैंक की डिमांड सेटिस्फाई कर पाएगा? यानी एक्सट्रीम कंडीशन में अगर सारे अकाउंट होल्डर्स बैंक में आ जाएं अपने पैसे वापस लेने, तो क्या बैंक इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि वो उन सभी को उनके पैसे वापस दे पाएगा? ओके, सो दिस इज बेसिकली द क्राइटेरिया कि अगर किसी न्यू प्रोसेस को रिक्वेस्ट ग्रांट कर दिया आपने, तो क्या सिस्टम हैव दैट मच कैपेबिलिटी कि एक्सट्रीम कंडीशंस में भी वो सभी प्रोसेस की रिक्वेस्ट सेटिस्फाई कर पाए. यानी कि जब नया पर्सन बैंक में लोन लेने आया, ठीक है, तो इसको कितना लोन चाहिए, इसको जितने अमाउंट का लोन चाहिए वो टोटल अमाउंट ऑफ मनी जितनी बैंक में है उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया गया. ठीक है, अब जो बची हुई मनी बची है, क्या ये बची हुई मनी सेटिस्फाई कर पाएगी उन सारे लोगों की डिमांड्स, जो भी अगर अगर सारे लोग एक्सट्रीम कंडीशंस में, अगर सारे लोग भी बैंक में आ गए अपने पैसे मांगने, तो क्या बैंक हैव दैट मच कैपेबिलिटी कि वो उन सभी लोगों की डिमांड सेटिस्फाई कर दे? इफ यस, तो बैंक इस पर्सन को लोन सैंक्शन कर देगा. इफ नॉट, तो बैंक इस पर्सन को लोन सैंक्शन नहीं करेगा. ओके, द सेम थिंग विल गो फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, when a new process is created in the computer system, process must provide all the type of information to the operating system. जब नई प्रोसेस क्रिएट होती है कंप्यूटर सिस्टम में, तो वो सारी इंफॉर्मेशन अपने रिगार्डिंग सारी डिटेल ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड करके रखती है. ठीक है, किसमें? उसके पीसीबी में होती है, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम उसके रिगार्डिंग सारी डिटेल फेच कर लेता है. लाइक कि उसको कितने क्या क्या मतलब कि उसको कितने रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कितने आईओ डिवाइसेस चाहिए, कितनी सीपीयू एलोकेशन उसको जरूरत है, एंड हाउ मच मेमोरी इट वांट फॉर इट्स एलोकेशन. ठीक है, बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारी क्राइटेरिया एग्जामिन करता है, और इसके बेसिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस सीक्वेंस हमें फॉलो करना है ताकि सिस्टम डेडलॉक की स्टेट में ना जाए. ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम उसके सारे क्राइटेरिया एग्जामिन करके तय करता है कि वेदर मुझे इस प्रोसेस को सिस्टम में लेना है या नहीं लेना है. इस प्रोसेस को सिस्टम में लेने से क्या मैं अनसेफ स्टेट में तो नहीं चला जाऊंगा? क्या मैं इस प्रोसेस की सारी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर पाऊंगा? अगर ये प्रोसेस अपने एक्सट्रीम रिसोर्स, मतलब सबसे ज्यादा सारे रिसोर्स भी एक साथ मांग ले, तो क्या मैं इतनी क्रेडिबिलिटी रखता हूँ कि मैं इसको वो सारे रिसोर्स दे पाऊंगा? इफ यस, तो मैं इसको रिसोर्स ग्रांट कर देता हूँ. इफ नहीं, तो मैं इसको रिसोर्स ग्रांट नहीं करूंगा. ठीक है, इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस सीक्वेंस फॉलो करता है कि किस ऑर्डर में मैं प्रोसेस को एग्जीक्यूट करूं, पहले कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट करूं, फिर कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट करूं, ताकि मेरा सिस्टम अनसेफ स्टेट में कभी जाए ही ना. ओके, सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम, और यू कैन से बैंकर्स एल्गोरिथम. ठीक है, ये बैंकर्स एल्गोरिथम होती है, और इस तरीके से बैंकर्स एल्गोरिथम काम करती है. ठीक है, आई होप you guys know about the deadlock avoidance and bankers algorithm. ठीक है, कि आपको समझ आया होगा कि bankers algorithm क्या होती है, deadlock avoidance क्या होता है. अगर फिर भी आपको इसके रिगार्डिंग कोई एनी क्वेरी होगी, तो you can also ask me in the comment section. I will definitely give you answers of all your queries. Now in the next video we will discuss about how the bankers algorithm will work
In the today's video we discuss the theory part, okay, कि bankers algorithm ऐसे ऐसे करती है, theory part we discuss. But in the next video we will discuss about the practical part कि how कैसे allocation होता है, कैसे process को resource अगर कोई process को request grant कर कैसे करी जाती है, ठीक है, क्या process sequence follow करता है operating system, ठीक है. So banker algorithm का actual implementation, practical implementation अपनी next video में cover करेंगे. Okay, so if you guys like that particular video, please don't forget to hit the like button, share button, subscribe button. Till then, okay, bye. Thank you.